Hello, good evening, everyone. Namaste. I'm Ruby Jain, a transformation coach and healer with expertise in Hope Nope No and EFT healing. I am an internationally recognized Hope Nope No and EFT healer. I'm a certified NLP coach by Nitesh Khatri and Dr. YSR. I'm a certified hypno healing therapist and a PLR therapist certified by Dr. Gopal Maheshwari. I'm a certified meditation facilitator by Campreneur Group. I am certified for psychic surgery healing as well. So, namaste, beautiful souls. Today, as we all are very much aware that we all have master class, okay, and master class सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। और आज मेरे साथ में आप लाइव ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करेंगे, लाइव हीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। सो एवरीबडी, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ टुगेदर। चलिए सभी लोग मिलकर के एक साथ एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। इनहेल डीपली। सभी लोग अपना हाथ, one hand, right hand, maybe you can keep your place your right hand on your heart and say it along. Let's say it along. And for next, inhale deeply and say it along. For the next 90 minutes, I choose healing over whatever challenges, over hurt, over patterns, over everything or anything that is going on in my life. Now, everybody, so set an intention. आप अपना intention set कर लीजिए. Whatever you are ready to release, okay? Whatever is ready to be released and whatever you are ready for, may it gently leave today. To continue about myself, I help clients to overcome emotional, mental, and physical challenges. How? Let's understand. So, hi everyone. Once again, I'm Ruby, the proud founder of Heal at Calm, a sacred space dedicated to inner transformation and holistic healing. As a transformation healer, my life's purpose is to help individuals release their emotional, mental, and spiritual blockages and step into a life of peace, clarity, and fulfillment. I'm a certified international Hope Nope No and EFT healer, meditation facilitator, all of that I have already explained to you all. Now, with the mission to transform millions of life, now my target, my mission is to transform millions of life by the end of this year or maybe by God's grace in the upcoming years. My journey has already touched and healed nearly 600, I must say now, though more than uh, thousands of souls, beautiful souls, who have experienced breakthroughs in their health, relationships, career, and in spiritual alignment in my sessions or through my sessions, be it meditation sessions for kids, for adult, for be it my 21 days transformative healing journey, for a course that I'm conducting, every month, which happens monthly, Monday to Friday, or be it VIP healing sessions wherein I help people heal with their um, wounds, their patterns, their challenges, their loops, the cycle that they feel they are trapped in. Okay, so through Heal at Calm, I aim to spread the message that true healing begins within. When we choose forgiveness, self love, and awareness, my deepest joy lies in watching individuals shift from pain to empowerment, fear to courage, and confusion to clarity. When you heal yourself, you heal the world around.
Now, you all can see the success stories. So these are the pictures of my clients, and I feel that this grid, this is a old collage that I have placed here. Now, though many souls are really getting advantage, and yes, with me, you will learn a seven-step manifestation technique by Roxy Nafusi. You can hear see the author herself, Roxy Nafusi, who has guided many souls through her book, How to Manifest Properly in Life. Next, why there's a need for transformation. Let's understand this in detail. You all will understand this with me, okay? Now, let me take you all to this beautiful transformation journey. Let's understand why transformation is important, okay? Why there is, the need of for transformation. So, transformation isn't just a luxury; it is a necessity, especially in today's fast-paced, emotionally demanding world. Here's why the urgency for personal transformation is stronger than ever. Let's understand everyone. Okay, so point one, like, why there is an urgency, break free from repetitive, or why there is a need. If you don't, you know, आप अगर अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, if you don't, accept the transformation, if you don't start the transformation, you will continue with so many things like repetitive patterns, emotional baggage, and your dreams won't, come true. So, breaking free from repetitive patterns. If you find yourself stuck in cycles of stress, self doubt, toxic relationships, or limiting beliefs, it's a sign that transformation is needed now. The longer you wait, the more these patterns become ingrained, making them harder to break. Emotional baggage weighs you down. Holding on to past pain, resentment, trauma silently drains your mental, emotional, and physical energy. Unhealed wounds manifest as anxiety, fear, or even physical ailments. The sooner you release them, the lighter and freer you will feel. तो what is more important, अगर आप continuously, हम लोग habit में आ जाते हैं कि ठीक है, it's okay, ट्रॉमा है, आपको पता नहीं है आपका ट्रॉमा, आपको जो भी ट्रॉमा आपने एक्सपीरियंस किया है, एंड आपका ट्रॉमा आपके चाइल्डहुड से हो सकता है, आपके इस पास्ट के लाइफ से हो सकता है, या पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, जिसका आपको रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपने आप को फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली हील करना चाहते हैं, और आप अपने अपने आप को अच्छे से देखना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके इमोशनल, आपके जो ट्रॉमाज़ हैं, आपको उसे रिलीज़ करना ही, डिसाइड करना ही होगा। देन आपका आप नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, the world is changing rapidly, okay, with increase societal pressures, technological advancements, and global uncertainties. Emotional and spiritual resilience is more important than ever. Transformation helps you adapt, grow, and remain centered amidst life's chaos. अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को, आप अपनी लाइफ के केओस को कंटिन्यू ही करने वाले हैं. So it is very important that you start transformation, that you accept the transformation. I'm sorry that in between somebody pinged me for the link for today's masterclass. Next one, as I said that the world is changing rapidly. अगर आप अपने ट्रॉमा में, अपने वुंस में इमोशनली आप बहुत ड्रेन्ड है, तो आप जो फास्ट पेसिंग वर्ल्ड है, जो
इतनी जल्दी से सब कुछ चेंज होता रहता है, आज एक नई टेक्नोलॉजी आई है, कल कुछ और आने वाला है। सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी चल रहे हैं, उन सब के रहते हुए अगर आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं किया, अपने स्पिरिचुअल रेजिलेंस को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है अगर, ओके, तो क्या होने वाला है, आप अपने एक ट्रू अप ट्रैप में, आप अपने उस लूप में फंसे रह जाएंगे, आपको फील भी नहीं होगा कि आपकी ग्रोथ ही रुक चुकी होगी। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें। एंड नाउ इफ यू फील दैट यू आर नॉट अवेयर हाउ टू रिलीज, ओके, आपको समझ में आ गया कि दैट दिस इज अ रेपिटेटिव पैटर्न इन माय लाइफ, ठीक है, और अब मुझे ये पैटर्न को चेंज करना है, बट आई डोंट नो, आई फील स्टक, आई डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। प्लीज डोंट बी वरी, ओके, आपको टेंशन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई हैव इन दीज 21 days transformative healing challenge, you will be provided, okay, you will be provided a set of tools and techniques जहां आपको पूरी तरीके से इनेबल किया जाएगा। आई विल इनेबल यू टू transform yourself with these powerful tools and techniques. So I have clubbed such tools and techniques that I'm going to explain you all after this. Now, अगर आप स्टक हो गए, योर ड्रीम्स वोंट वेट फॉर एवर, राइट, आप बनना चाहते हैं कुछ, लेकिन वो लूप साइकिल से जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे, आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। एवरी डे यू पोस्टपोन पर्सनल ग्रोथ, क्यों, हम में से कितने सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, लेजीनेस है, बॉडी का लेजीनेस इज नथिंग, जस्ट इज अनदर सिम्टम ऑफ यू being trapped in the external forces, in the external energies, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। ये आपके ऑरा में कोई एनर्जी है, कोई एंटिटी है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेटिव हीलिंग चैलेंज, जहाँ पे 21 डेज में आप अपने आप को, अपने चैलेंजेस, अपने आप को, अपने ऑरा को क्लेंस कर पाएंगे। जब आप ऑरा को क्लेंस करते हैं, एनर्जीज को रिलीज करते हैं, आपको क्लैरिटी दिखाई देती है, राइट। सो वाई वेट टू बिकम द पर्सन यू वर मेंट टू बी, क्यों इतना ज्यादा वेट करना है। लेट्स स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर्स द ब्लॉक्स होल्डिंग यू बैक, ठीक है, तो जितने भी ब्लॉक्स जो आपको अब तक रोक के रखे हुए थे, हम उस इस जर्नी में इसको क्लियर करने वाले हैं। स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी आर टॉक्सिक, unresolved emotions and constant stress weaken your immune system, disrupt sleep, and create mental exhaustion. Healing and transformation techniques like meditation, energy work, and belief shifts help you reclaim inner peace and vitality. तो जैसे ही आपके इमोशंस सॉल्व होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस, क्योंकि हमारे पूरे इमोशंस हमारी बॉडी पे जाकर के अलग अलग चक्रास पर अपनी जगह बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एनर्जी फ्लो को स्टॉप कर देते हैं, रिजल्टिंग इन डिस्टर्ब स्लीप, okay, create mental exhaustion. Healing and transformation techniques like meditation, chakra healing. During these 21 days, I'll be helping you all to understand the basic knowledge of all 7 chakras will be given to you all. कैसे अपने चक्रास को, लोकेशन को फील करना है, लोकेशन को अंडरस्टैंड करना है, कैसे आपके चक्रास को फील करना है आपकी बॉडी में, और चक्रा, डिफरेंट चक्रास में, आपके अलग अलग चक्रास में जो भी एनर्जी ब्लॉक हो गई है, वो सारी एनर्जीज को आप कैसे रिलीज कर पाएंगे। एंड आपका जो बिलीफ शिफ्ट है, इट्स अ ब्यूटिफुल, देयर इज अ ब्यूटिफुल टेक्निक और अ मोडालिटी that I have taken from NLP, right? From the 16 modalities of NLP, the belief shifts is very important. अगर आपका strong belief है, बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं हेल्थ के एरिया में, मेंटल चैलेंज हो, इमोशनल चैलेंज है, दे स्टार्ट गिविंग अप, छोटे छोटे से चैलेंजेस से उनको गिव अप करना शुरू कर देते हैं, एंड उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है खुद को लेकर के कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती। अगर कॉन्स्टेंटली ये बिलीफ आपने अपने सबकॉन्शियस में एब्जॉर्ब होने दिया, राइट, तो क्या होने वाला है, इस बिलीफ से वो जो कांस्टेंट मैसेज आपकी बॉडी को जाता है,
मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लगता है, नींद क्यों नहीं आती है, पेट क्यों दुखता रहता है, हार्ट बीट क्यों बढ़ती रहती है, अजीब सा क्यों लगता है। तो ये आपका कांस्टेंट एक मैसेज होता है, और ये कांस्टेंट मैसेज थ्रू द सबकॉन्शियस, जब आप अपने आप से रिपीटेडली इस मैसेज को बोलते हो, सारे के सारा थ्रू योर न्यूरॉन्स, आपके बॉडी के सारे सेल्स इस मैसेज को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एनर्जी आपके चक्रास को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, रिजल्टिंग इन wounds, again, sleep disturbances, mental exhaustion, mental disturbances, emotional weight, all of that you start experiencing. With me during my 21 days, आप मेडिटेशन करेंगे, धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस को शांत करना शुरू कर देते हैं, एनर्जी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, चक्रास की क्लेंजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। दैट हेल्प्स अ लॉट, राइट। जैसे जैसे एनर्जी आपकी निकलेगी, वैसे वैसे आप ऑटोमेटिकली इस शिफ्ट को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को फील करना शुरू कर देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव अनफुलफिल्ड, इजंट इट। भगवान ने एक ही जीवन दिया है, हमें कोई गारंटी नहीं है आगे हम कहाँ जाने वाले हैं। वापस से ह्यूमन बर्थ में, ह्यूमन बॉडी में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट। कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती ही रहती हैं, हम सबकी लाइफ में चलती रहती हैं। सो इमेजिन लुकिंग बैक years from now and realizing you stayed in the same place, emotionally, mentally, or spiritually. Transformation ensures you are evolving. जब आप मेरे साथ इस जर्नी में रहेंगे, आपको एक इंश्योरेंस, आपको एक अश्योरेंस दी जाएगी। आप उस अश्योरेंस को मेरे अलावा, सी, I have already told you all that it is a guaranteed 21 days transformation package. If you don't feel a shift, if you don't feel evolving, and if you don't start experiencing joy and fully living rather than just existing, your money is going to be refunded. आप लोगों को आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन for that you have to stay with me for 21 days, dedicated 21 days for your transformation, and then you only will come up with lot of shift. आपको जब हमारी एनर्जी रिलीज होती है हमारे पूरे चक्रा से, ऑरा से, then you will start experiencing lot of vacuum within you. अब आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बहुत नॉसियाटिक फील होता है, वॉमिटिंग जैसी फील होती है, पेट में दर्द जैसा लगता है, चक्कर आते हैं, लूज मोशंस आजकल बहुत हो रहे हैं, फीवर क्यों आ रहा है, बॉडी एक क्यों आ रहा है। रिमेंबर, जब आप अपनी फिजिकल बॉडी से कुछ रिमूव करते हैं तो डॉक्टर आपको रेस्ट करने बोलता है, लाइट फूड खाने को बोलता है, बाहर का खाने के लिए मना कर देता है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन योर फिजिकल बॉडी, राइट। लेट्स से आप कोई ऑपरेशन करवाते हैं, आपने अपनी बॉडी से स्टोन्स को रिमूव करवाया है, या फिर आपने अपनी बॉडी से कोई भी मेजर ऑपरेशन आप करवाते हैं, तो आपको 15-20 डेज के लिए पूरा रेस्ट करने दिया जाता है, क्योंकि आपका एक फिजिकल पार्ट इज नाउ आउट, एंड वो पूरा रिपेयर करने के लिए पूरे सेल्स की ताकत लगेगी, पूरे बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नरिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। इतना सब कुछ हमें पता है, फिर हम अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हैं। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, इस हीलिंग जर्नी में हैं, आप हर रोज मेरे साथ थ्रू टूल्स, टेक्निक्स, मोडालिटीज एंड हीलिंग्स, आपकी जो ऑरा हीलिंग होगी, आपकी चक्रा हीलिंग होगी, राइट, जो हाउस हीलिंग होती है, जो भी एनर्जीज हैं आपके घर में, आपकी बॉडी में, आपकी लेयर्स ऑफ बॉडी में, जब वो रिलीज होती हैं तो एक वैक्यूम बनता है, और रिलीज होने के अलग अलग सिम्टम्स भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत हेडेक भी आ जाता है, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन बाय सो मेनी साइंटिस्ट। मेरे गुरुजी, मेरे कोच डॉक्टर उदय शाह, डॉक्टर गोपाल महेश्वरी, वो हमेशा वार्न करते हैं कि जब भी हिप्नो हीलिंग सेशंस व्हेनेवर आई कंडक्ट एंड आई वांट पीपल, आप हिप्नो हीलिंग सेशंस में आए, मेक श्योर दैट यू कीप अ ग्लास ऑफ वाटर रेडी, which I advise people during the PLR therapies also. As you all are very much aware that I'm a PLR therapist, right? Certified by Dr. Gopal Maheshwari himself.
तो अब हम क्या करेंगे, जब ये आपकी जर्नी चलने वाली है और आपके ये एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, देन इट इज़ अ गुड साइन कि आप एक सही जगह पर हैं, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द राइट टाइम इज ऑलवेज नाउ। रिमेंबर, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार, अभी मुझे बहुत काम है, अभी बच्चों के स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, पहले एग्जाम खत्म हो जाए फिर मैं अपना ध्यान रखूंगी, और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं अभी मैं किसी मेडिकेशन में हूँ, पहले वो कोर्स खत्म कर लेती हूँ फिर कर लेती हूँ, फिर आपको याद आएगा यार घर में पापा बहुत बीमार हैं या फिर मम्मी बहुत बीमार है, पहले उनको ठीक कर दूं फिर मैं करूंगी। अगर जब भी आप ये प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, इसका मतलब आपके ऑरा में कुछ है जो आपको कंटिन्यूअसली डिमोटिवेट करता रहता है कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, 2 महीने के बाद कर लेंगे। तो जितना ज्यादा आप इसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं है, इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, इट विल नेवर कम माय डियर पीपल। Growth happens when you decide to step forward despite uncertainty or fear. चाहे कितना भी डर लग रहा हो, चाहे कितनी भी अनिश्चितताएं क्यों ना आ जाएं, the sooner you start, the sooner you experience freedom, confidence, and alignment. Transformation is urgent because your happiness, peace, and future depend on it. Why wait to live your best life? तो अब से ये डिसाइड कर लें क्यों हमें इतना ज़्यादा इंतज़ार करना है। Why there is a need? Let's understand in detail. और भी ज़्यादा हम डिटेल में कर लेते हैं, बिकॉज क्यों ज़रूरत है हमको, बिकॉज सर्वाइवल पैटर्न्स आर नॉट डिज़ाइन फॉर ग्रोथ। जितने भी हमारे सर्वाइवल पैटर्न्स होते हैं, चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, इमोशनल वुंड्स है, फियर बेस्ड डिसीजंस हैं, ये जितने भी हम लोग अगर डेली एक्सपीरियंस करते हैं, रिपीटेड सबकॉन्शियस पैटर्न्स है, अगर रोज़ आपको ये लगता है कि आपने अपने बचपन में कुछ नोटिस किया होगा, अगर आपके पेरेंट्स के कुछ पैटर्न्स थे, आप अननोइंगली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो। अगर आप ये मैनिफेस्ट करके बैठे हुए हैं तो रिमेंबर, अब क्या होने वाला है, आप भी इसी ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं, ये आपके सर्वाइवल पैटर्न्स हैं, इजंट इट? तो ब्रेन का क्या होता है, द ब्रेन इज वायर्ड फॉर सर्वाइवल नॉट हैप्पीनेस। हमारा ग्रोथ होने ही नहीं देगा। सो इफ वी डोंट कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म, वी अनकॉन्शियसली रिपीट व्हाट इज नॉट हील्ड गेट्स रिपीटेड। तो क्या होगा, वो हील नहीं हुआ है। आपने देखा होगा, अगर आपकी बॉडी पे कुछ हो जाए, लेट्स से हमने देखा है कि बचपन में देखा था ना कि बॉयज आ जाते थे, काफी सारे लोगों को बॉडी पर, बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सपीरियंस भी करते थे कि अरे ये बार बार आ जाता है मेरी बॉडी पे, बार बार बॉयल आ जाते हैं, तो अब मैं कैसे क्लियर करूं। अगर आपने उसका ध्यान नहीं किया तो आप देखेंगे कि लाइफ लॉन्ग आपको ड्यूरिंग समर, आपने देखा है, आपके बच्चों ने भी देखा होगा, आपने अपने बचपन में भी देखा होगा इस चीज को, कि क्या होता है कि वो जो बॉयल आता है आपकी बॉडी पर, वो वहां रिपीटेडली सेम टाइम पे आएगा आएगा आएगा। जो भी सिम्टम्स है वो बार बार अकरिंग इसीलिए है क्योंकि ब्रेन इज वायर्ड फॉर सर्वाइवल नॉट हैप्पीनेस, नॉट फॉर योर ग्रोथ, राइट? If we don't consciously transform, we consciously unconsciously repeat. So what is not healed gets repeated, my dear people. इसीलिए हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया, ब्रेन को पता है इसको तो सर्वाइव करने की आदत है, इसको बुखार में भी जिंदा रहने की आदत है, इसको सरदर्द में भी रहने की आदत है, दे दो इसको। क्यों? क्योंकि आपने अपना एक स्टेप लिया ही नहीं है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग प्राची एंड मुनका जी, a very warm welcome to you both. Okay, let me just finish it, Evening. then I will take you on the call. Good Okay, evening. good evening. Okay, now why transformation? Now, why do you think that transformation is needed? Because pain is a signal. हमने punishment ले लिया इसको, isn't it? Transformation becomes necessary when relationships keep failing. Same emotional triggers repeat. Self doubt doesn't go away. Success feels blocked. इनर एम्प्टीनेस परसिस्ट, कंटिन्यूसली लग रहा है कि क्या चल रहा है, क्यों खालीपन है। पेन इज नॉट हियर टू टॉर्चर अस, इट इज हियर टू रीडायरेक्ट अस।
इजंट इट? लेकिन अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, क्योंकि हमें नहीं पता है, और ये हमें ही नहीं, बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, राइट? हम में से कितने परसेंटेज, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 80%, 85 लोग यही करते आए हैं, यही गलती होती है। हम रिपीटेड पैटर्न्स के लूप साइकिल में जा रहे हैं और हमारे बच्चे भी उसी लूप साइकिल में फंसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, उन्होंने खुद को हील नहीं किया था। अब हम अपने आप को हील नहीं करेंगे, ये पैटर्न हमारी जनरेशन में आने ही वाला है। ऐसा नहीं है जनरेशन खत्म हो जाती है, डीएनए अलाइव रहता है, आपका सोल कहीं नहीं जाने वाला है, वो फिर आएगा, लेकिन आएगा, लेकिन इसी इसी रिपीटेड पैटर्न के साथ में आप दोबारा आओगे। आपने हीलिंग को प्रायोरिटाइज किया ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं किया है। जब तक आप अपने पेन को हील नहीं कर लोगे, एक्सेप्ट करके, आदत पड़ गई है। खुद से भी तो रिपीट करते रहते हैं ना हम लोग, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब जितना रिपीट करोगे, आपका न्यूरॉन, पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, पूरे सेल्स को एक मैसेज दे रहा है, क्या? आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप बीमार हो, आपको तकलीफ है, आपको कष्ट है। अब नाउ द माइंडफुलनेस स्टार्ट्स विद हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? आपको अब रोज अपने आप से ग्रेटिट्यूड के साथ में, वॉट एवर इज हैपनिंग विद मी, माई सोल इज स्टिल अ प्योर इन इट्स वाइटल फॉर्म। वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करने आई है। मे बी इन माई प्रीवियस लाइफ आई माइट हैव लाफ्ड एट पीपल हु वर सिक लाइक मी, या फिर हो सकता है मेरी इसी जिंदगी में भी मैंने लोगों का मजाक बनाया होगा जो बीमार रहे होंगे। अगर इस लाइफ में नहीं बनाया, तो पास्ट लाइफ में तो कम 100% आपने ये गलती की होगी। और यही ट्रॉमा, वही सारी तकलीफें हमको भगवान ने ब्लेसिंग्स में देनी है, जाओ तथास्तु, क्योंकि हमको अपना कर्मा न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। सो इट इज राइट टाइम टू स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन, बी इट अ ग्रुप हीलिंग और बी इट योर वीआईपी हीलिंग। प्लीज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ नाउ। आइडेंटिटी शेप्स रियलिटी। इफ यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर, आपकी पूरी रियलिटी चेंज कर देंगे। योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर आइडेंटिटी। इफ समवन सबकॉन्शियसली ओके बिलीव्स आई एम नॉट इनफ, मनी इज हार्ड, love is unsafe, I'm sick, and I feel that I'm going to die of this sickness, this ailment, okay, this problem. They will unknowingly create experiences to confirm that belief, which just now I explained, right? Transformation means upgrading identity. अपने आप को रोज बोलना है ये, I'm happy, joyful, healed, transformed. I am in my purest form. Body is just nothing but that it has taken, the soul has taken a body to cleanse the karmic account. अब आपको रियलाइज करना है, कुछ तो करके आए हैं. So it is very important rewiring beliefs, upgrading identity, releasing emotional memory. जो भी emotional memory आपने अपने आप से attach की हुई है. Now scientifically, the brain is nothing but plastic. Neuroplasticity proves neural pathways can change, emotional responses can be rewired, trauma patterns can be softened. If change is biologically possible, staying the same becomes a choice. अगर ये possible है, तो फिर क्या करना है? आपको इसी मोड में रहना है सबको, या आगे करना है, आगे बढ़ना है, हीलिंग को चूज करना है, राइट? बिकॉज ग्रोथ इज आवर नेचुरल स्टेट। अगर आप नहीं भी चाहें तो जो भी आपकी स्टेट है वो ग्रो करती चली जाएगी। लुक एट द नेचर, caterpillar to butterfly, seed to tree, night to day, day to night. It is just a cycle of growth, right? So stagnation is unnatural, expansion is natural. Transformation is not becoming someone else. It is removing what you are not. So it is very important to accept it. Deep spiritual understanding is very important, my dear people. We transform because the soul seeks evolution. I'm going on explaining you this. Awareness wants expansion. Consciousness wants expression. Without transformation, we live reactively. क्या कर रहे हैं हम लोग? रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, अपने पैटर्न्स को रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिचुएशंस को एक्सेप्ट, पीपल को एक्सेप्ट कर रहे हैं. With transformation, we live intentionally.
रोज जब आप इंटेंशन के साथ में रिलीज करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे. So you can say, my dear people, transformation is not needed because you are broken. It is needed because you are ready to outgrow the version of you that has survived, isn't it? All right. So, this is how we come to a conclusion why transformation is needed and why is there an urgency for your or of your transformation.